Namaste, Jai Shri Ram, and welcome to Dharma Explorers. Dharma Explorers is a series of conversations with prominent personalities who are strong supporters of dharmic principles but were not born in a Hindu household. I'm your host, Jay Bansal, and I'm affiliated with the Vishwa Hindu Parishad of America, where I serve as the Vice President of Education. Today it is my great pleasure and honor to welcome Subui Khanji from Delhi. She is a senior Supreme Court advocate. Subui a warm welcome to you to Dharma Explorers. Thank you so much. Namaste, Jeji. It is a pleasure being here with you today. Thank you so much. So before we get started, let me give a brief background of yours to our audience. Subui Khanji is an advocate at the Supreme Court of India and the founder and national coordinator of the Rashtra Jagran Abhiyan. Under this campaign, she frequently travels to different parts of India. She is awakening the citizens against the forces that seek to divide India and inspiring them to rise above language, caste, region, and religion to unite as Indians. She identifies herself as a Sanatani Muslim and is the proponent of the ideology named Sanatani Muslim and is working towards re-establishing the tradition of Rahim, Raskhan, and Kabir in India. As part of this National Awakening campaign, she is working towards the conservation and promotion of India's natural heritage, especially cows, the Ganga, villages, agriculture, and the Himalayas. Once again, Subhuji, a very warm welcome to you. I'm looking Thank forward to our conversation. Same here, Jeji. So let's start with something very simple. Why don't you tell us a little bit about yourself, your growing up years, your family, any special influences that shaped your worldview? Jeji, I was born and brought up in Meerut. It is a city in the state called Uttar Pradesh. So, my mother was a lawyer and she was also a social activist. She's still there. She doesn't practice anymore, but my maternal grandfather was also a lawyer. So, that ways, I'm a third generation lawyer in my family. And my father was in CDA Army in defense accounts. And my initial education, my shiksha, my parvarish, pedaish, everything happened in Meerut, Uttar Pradesh. Then I came to Delhi in 2005. Initially, I did some corporate jobs. Then I completed my law in 2010 and started practicing in Delhi. Um, if you talk about the influences that shaped my worldview, I have always seen an environment of service in my family. Like, because my mother was already a social worker, so I used to see her working for different causes. Like halala, we are speaking against halala now. She used to talk about it 20 years ago. Then I have been influenced greatly by my grandfather. He was late Ziaullah Khan, and he was in police services. He was DSP in 1960s and posted in Meerut. I have been listening to this from my elders, elders of my family. So it has been a great influence that I come from that legacy. Like my Dadaji was a fierce police officer. तो मेरे दादाजी ने अपने समय पर रेड लाइट एरिया, जुए के अड्डे, ये सारी बदमाशियाँ, ये सारी चीज़ें मेरठ में ख़त्म करवाई थी। और उनकी डेथ भी ऐसे हुई थी कि वो डकैत्स को फॉलो कर रहे थे इन हिज जीप, एंड वो जीप जाकर किसी पेड़ से टकराई थी। और जो स्टीयरिंग होता है जीप का वो उनके चेस्ट पर लगा था, उनकी रिब्स ब्रेक हो गई थी। एंड हालांकि उस एक्सीडेंट के बाद वो बच गए थे, बट क्योंकि जीप पेड़ से टकरा के उलट गई थी और उनके जो एक सबॉर्डिनेट थे वो जीप के नीचे दब गए थे, तो उनको पुल करके वो बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। और उस कोशिश में उनकी जो टूटी हुई पसलियाँ थी वो उनके इंटरनल ऑर्गन्स में घुस गई थी। सो दैट इज़ हाउ ही डाइड। तो इस तरह की बातें सुन के हम लोग बड़े हुए हैं कि आपको वफादारी, आपकी किसी भी सिचुएशन में डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, हक का साथ देना है, सच्चाई का साथ देना है,
डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, सर्विस देनी है। तो इस तरह के एनवायरनमेंट इनिशियली जो मुझे लगता है कि हालाँकि मेरी एक जो जीवन यात्रा चली आगे, जब मैंने भारत का प्रवास करना शुरू किया, फिर मुझे मेरे गुरु मिले, फिर मुझे मेरे पति मिले, तो ये एक लंबी जर्नी आगे स्टेप बाय स्टेप मुझे जहाँ मैं हूँ वहाँ लाने के लिए प्रकृति अपना एक रच ही रही थी पूरा प्लान। लेकिन मुझे लगता है इनिशियल इन्फ्लुएंसेस यही रही मेरे परिवार की तरफ से, एंड आई हैव बीन ह्यूजली इम्प्रेस्ड बाय माय फादर, माय अब्बा। ही इज़ नो मोर। उनका नाम है लेट श्री परवेज़ खान, और उनको मैंने गृहस्थ आश्रम में संत देखा है। जी, मतलब एक डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट, चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट, लोगों के लिए हमेशा सब कुछ एक कंपैशन के नाते करना विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। तो कर्म की जो फिलॉसफी है वो मैंने एकदम फर्स्ट हैंड अपने फादर से सीखी है। तो ये इन्फ्लुएंसेस मेरे जीवन में हमेशा से रहीं। और मुझे 2016 में मेरी शादी हो गई थी। मेरे हस्बैंड मुस्लिम नहीं हैं, माय हस्बैंड इज़ अ ब्राह्मण। हिज नेम इज़ श्री नील रतन झा। तो माय हस्बैंड हैज़ ऑल्सो बीन अ ग्रेट इन्फ्लुएंस, क्योंकि उनसे मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चली इंटेलेक्चुअली, क्योंकि ही इज़ एन अविड रीडर और बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो उनसे मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली जो मैंने पढ़ी नहीं थी, अनुभूति करी थी, बट ही गेव ब्यूटीफुल वर्ड्स टू दोज एक्सपीरियंसेस। और मेरे गुरु के मिलने के बाद तो मेरा जीवन बदल गया। आप ये कहिए कि मैं बिट्स एंड पीसेस में सारा कुछ कर रही थी। 2012 में मैं एक आश्रम गई थी, स्वामी शिवानंद आश्रम। वहाँ जी, पर मैं वेजिटेरियन बनी थी। आई बिकेम अ शाकाहारी देयर। आई स्टार्टेड रीडिंग वेदांत देयर। आई स्टार्टेड रीडिंग भगवद गीता देयर, एंड बाय द टाइम आई वाज नॉट मैरिड, हम्म, एंड आई हैड नॉट इवन मेट माय हस्बैंड एट दैट टाइम। ये मैं इसलिए ज़रूर बोलती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि आई एम प्रोपेगेटिंग दिस फिलॉसफी बिकॉज आई एम मैरिड टू अ हिंदू। सो इट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। एक बार भारत में एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था जिसमें हेडलाइन थी, मेरा एक इंटरव्यू था। सो आई हैड सेड दैट आई एम अ हिंदू बिकॉज आई एम बॉर्न इन हिंदुस्तान। आई डू नॉट बिलीव इन दिस फिलॉसफी बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड। और जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं बहुत स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड हूँ। मैं बहुत आसानी से किसी की थॉट से कन्विंस होके उसको प्रोपिगेट करना शुरू नहीं कर दूंगी, अनटिल एंड अनलेस आई हैव ट्रूली फेल्ट इट एंड अंडरस्टूड इट माई सेल्फ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सब था, और प्रकृति के द्वारा ही ऐसा लग रहा था कि मेरे जीवन में वो लोग आते जा रहे थे जिनकी मुझे ज़रूरत थी, और मेरा रास्ता एक तरह से प्रकृति बना रही थी। और जो मेरी एनर्जी अलग अलग जगह पर बटी हुई थी उसको एक डायरेक्शन देने का काम फाइनली मेरे गुरुजी ने किया। मेरे गुरुजी आदरणीय श्री के एन गोविंदाचार्य जी हैं। उन्होंने मुझे एक फोकस दिया, एक डायरेक्शन दिया। उन्होंने मुझे एक एरियल व्यू दिया, एक चीज़ों को देखने का एक ऐसा एरियल व्यू दिया जो मुझे लगता है कि अगर वो नहीं होते तो मैं शायद बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों में उलझी रहती और अपनी ऊर्जा का इतना सदुपयोग नहीं कर पाती जितना मैं अब कर पा रही हूँ। सो दीज आर दी इन्फ्लुएंसेस। अगर किसी का नाम लेना भूल गई हूँ तो मैं मन से उन लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी, बिकॉज आई एम अ सीकर, अ लर्नर। तो मैं हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखती हूँ, और बहुत सारे लोगों से, बहुत सारी किताबों से, बहुत सारी परिस्थितियों से मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। yeah. I think Subhiji, you have actually encapsulated what we call Sanatan Dharma. Sanatan Dharma is all about being a seeker as opposed to being a believer. So you obviously were born in a non-Hindu family, a Muslim family, but in your public life, you have taken on a lot of the fundamental Islamists in public debates and conversations. And of course, you speak very positively about Sanatan Dharma, which is not always expected from practicing Muslim. So tell us what motivates you to go there. Uh, it is a very good question, Jaji, and very close to my heart, and actually a frequently asked question to me. Many people ask me this question. First of all, I have made it clear many times, and I want to make it clear again through your platform that I have never been against any religion whatsoever. I am not against Islam or any organized faith for that matter. I am only against how religions are being used to manipulate people. I'm against religions being used to brainwash people.
I'm against religions being used to control people in a way that they started doing things which in normal situation they would not do. So that kind of mind control I have always been against. और इसीलिए मैं क्योंकि मैं हमेशा ये मानती हूँ जय जी कि अपना घर साफ करने की जिम्मेदारी इंसान की खुद की होती है. हर व्यक्ति अगर अपने अपने समाज को ठीक करने की जिम्मेदारी ले ले, then we would be able to make a beautiful society. So I have been very vocal and critical about कुरीतियाँ और crimes that are being happening in the name of Islam because I'm born in that faith. मुझे लगता है कि अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? My religion is being defamed. My religion is being maligned. मेरे religion पे उंगलियां उठ रही हैं because of these things जो गलत हैं, जो नहीं होनी चाहिए. तो I should be the first person to speak against them. तो ये रीज़न है कि मैं हमेशा बोलती रही हूँ. और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ that a great mockery has been done to our religion. ग्रेट मॉकरी. इस्लामिक थियोलॉजी के साथ एक इतना बड़ा मजाक हुआ है जय जी. देखिए कुछ पॉइंट्स हम लोगों को बिल्कुल क्लियर कर लेने चाहिए कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज नॉट एजुकेटेड. वो पढ़े लिखे नहीं थे. ये हमें क्लियर कर लेना पड़ेगा कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ही डिड नॉट गिव अस एनी बुक. तीसरी बात, उनकी कोई बेटा जिंदा नहीं बचता था. उनके बेटे पैदा होते थे तो उनकी इंतकाल हो जाता था. तो जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद उनकी लेगेसी की एक लड़ाई, एक बहुत ही केओस या एक स्ट्रगल फॉर पावर वहाँ पर फैलना शुरू हुआ कि उनकी लेगेसी कौन संभालेगा. तो बेटा कोई होता नहीं था तो लड़ाई झगड़े आपस में चढ़े. इस पे बहुत लेट तारिक फतेह जी बहुत सुंदर बोलते थे कि आप लोग तो आज प्रॉफिट के नाम पे लड़ रहे हैं, आपने तो सत्ता के लिए प्रॉफिट के शरीर को 18 घंटे तक धूप में रखा था. सो दिस इज ट्रूथ कि प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद उनकी बॉडी को मुसलमानों ने, हिंदुओं ने नहीं, मुसलमानों ने प्रॉफिट मोहम्मद की बॉडी को धूप में रखा था सत्ता की लड़ाई में कि कौन इनका वारिस बनेगा. और उसके बाद फिर अबू बकर आई थिंक फर्स्ट खलीफा बने थे. तो अबू बकर के टाइम पर कुरान कंपाइल किया गया था. प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पे वो एक गुफा थी, हिरा करके गुफा थी, वहाँ जाके वो मेडिटेट करते थे. उनको जो मैसेजेस आते थे वो लोगों को बताते थे, लोग उनको पर्चियों पे और किसी चीज़ों पे लिख लिया करते थे, कुछ लोग मेमोराइज कर लिया करते थे. और इस तरह से उनका वर्ड ऑफ माउथ से उनकी टीचिंग्स फैल रही थी. आफ्टर हिज डेथ अबू बकर कंपाइल्ड ऑल दोज टीचिंग्स. और बड़ी मज़ेदार बात यहाँ पर ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद की जो बेटी थी बीबी फातिमा, बेटा जिंदा नहीं रहता था, बेटी तो जिंदा थी. और बेटियों के लिए प्रॉफिट ने उस समय बहुत आवाज़ उठाई थी. वो कहते थे कि जिस घर में बेटी पैदा हुई है उसको अल्लाह ने सलाम भेजा है, और इस तरह की चीज़ें हमें बताई जाती हैं बचपन से. उनकी बेटी जब आती थी रूम में तो वो अपनी बेटी के सम्मान में उठ के खड़े हो जाया करते थे. दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी ही हैज़ एंड दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट ही हैड फॉर हिज डॉटर. उनकी बेटी को भी आपने वो लेगेसी नहीं दी. उनकी बेटी के दामाद हज़रत अली, उनको भी आपने वो लेगेसी नहीं दी. जबकि प्रॉफिट के टाइम पे कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो हमें पता चलता है कि हज़रत अली प्रॉफिट के डिसेंडेंट या कहिए कि उनकी लेगेसी संभालने के लिए बिल्कुल जायज़ एक कैंडिडेट की तरह इस्लाम में माने जाते हैं. बट स्टिल यू डिड नॉट गिव हिम दैट पावर. और हज़रत अली ने जो कुरान कंपाइल किया वो खलीफाओं ने लेने से मना कर दिया. तो ये बात हमें मुसलमानों को ज़रूर समझनी चाहिए कि वो कुरान जिसको हम लार्जर देन लाइफ मान रहे हैं, जिसको हम ये मान रहे हैं कि उसका एक एक शब्द सही है, उसकी कंपाइलेशन के टाइम से ही लड़ाइयाँ चल रही हैं. थर्ड कैलिफ ने अपने से पुराने खलीफाओं की 500 कुरान की कॉपीज को मंगा के उसमें आग लगा दी और कहा कि अब मैं जो कंपाइल करूंगा वही माना जाएगा. तो आप ये सोचिए कि हाउ कैन यू से कि नहीं इसमें तो कोई ये नहीं हो सकता, नहीं इसमें तो सारी चीज़ें सही हैं. तो मुझे लगता है कि जो समझदार मुसलमान हैं उनको आगे आकर इस्लाम की जो थ्योरी है, थियोलॉजी है, उसको दोबारा से पढ़ना होगा. इस्लाम में उस रिफॉर्म की ज़रूरत है कि क्या गलत हुआ है. और प्रॉफिट की डेथ के बाद जब ये जितने भी इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए निकले थे बाहर, कैप्चर करने के लिए पूरी दुनिया को, इन लोगों ने अपनी सहूलत से शरिया लॉ बनाई, इन लोगों ने अपनी सहूलत से बिद्दत यानी इनोवेशंस इन इस्लाम बनाया. जिस जिस चीज़ की इन्हें ज़रूरत पड़ती गई वो चीज़ ये कानून के नाम पे शरिया में डालते गए. जैसे जब इन्होंने इजिप्ट, सीरिया, इराक, ईरान ऐसी कंट्रीज़ पे अटैक किया, वहाँ पे खूबसूरत महिलाएं होती थी तो उनसे ये शादी करना चाहते थे, तो अपनी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बीवियाँ थी उनको छोड़ना चाहते थे.
तो इन्होंने हम्म, तलाक बिद्दत का इजाद किया। तलाक 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 बोल के हम किसी को भी कभी भी छोड़ सकते हैं। तो दोज काइंड्स ऑफ बिद्दत हैव बीन डन। और मुझे लगता है कि अगर हम अपने मज़हब के नाम पर की जाने वाली गलतियां और अपराधों को साफ करेंगे, तभी हम एक स्पिरिचुअल वे ऑफ आर फेथ वी कैन ब्रिंग इट फॉरवर्ड। और सनातन धर्म की बात आपने मुझसे पूछी कि मैं सनातन धर्म की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड क्यों हूँ, तो मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताना चाहती हूँ जय जी। मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइज्ड फेथ से ज़्यादा ज़रूरी एक वे ऑफ लाइफ, एक स्पिरिचुअलिटी, एक अध्यात्म या एक इंसानियत होती है। एंड आई हैव ऑलवेज बीन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सनातन धर्म सिंस माय बर्थ, क्योंकि इट इज़ अ वेरी सिंपल वे ऑफ लाइफ। उसके अंदर इतनी समंजसता है, अपने अंदर समा लेने की क्षमता, वो हम्म, इतना वास्ट है, इतना विशाल है कि वो हर पंथ को, हर रिलीजन को अपने अंदर समा लेता है, हर विचारधारा को, हर देश को। मैं ये नहीं कहूँगी कि सनातन धर्म भी सिर्फ भारतीयों का है, सनातन धर्म पूरे विश्व का है, बिकॉज दीज आर यूनिवर्सल लॉज। वो लॉज ऑफ नेचर की बात करता है। तो मैं यही कहूँगी, जब मैं छोटी थी बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछती थी। मुसलमान बच्चे को बचपन से बताया जाता है कि जब आप पैदा होते हैं आपके कान में अजान दी जाती है, जब आप मरते हैं तो उसकी नमाज होती है। हम्म, तो इतनी छोटी सी जीवन है, अजान से नमाज तक ये मुसलमान को बताया जाता है। तो मैं ये सवाल पूछती थी मौलाना से कि अगर लाइफ इज़ अ बबल, अगर इतनी छोटी ज़िंदगी है अजान से नमाज तक की, हमें आप बताते हैं कि अल्लाह ताला हमें हमारे माँ बाप से भी 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। अगर ये सारी चीज़ें सच हैं, तो फिर हमें, अगर हमसे इस छोटे से ज़िंदगी में कोई गुनाह हो जाएगा, कोई गलती हो जाएगी, तो क्या हमें वो गलती सुधारने का मौका नहीं देगा? वो हमें हमें वो दोज़ख में डाल देगा। फिर दोज़ख की ग्राफिक डिटेल्स हैं कि वो गरम-गरम तेल में पकौड़ियों की तरह आपको तला जाएगा, आपको साँप, बिच्छू डस मारेंगे, डंक मारेंगे, एक फ़ियर साइकोसिस क्रिएट की जाती है। तो ये सवाल मेरे मन में हमेशा आता था कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, इंसान है तो हम गलती भी करेंगे, ज़िंदगी भी छोटी-सी बनाई, फिर वो हमें वो गलतियाँ सुधारने का मौका क्यों नहीं देगा? वो इतना कट्टर कैसे हो सकता है? ये सवाल मैं पूछती थी। तो इसका जवाब मुझे सनातन धर्म में मिला। थ्योरी ऑफ रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म। बहुत लॉजिकल लगा जय जी कि हम्म, आप तब तक पैदा होते रहेंगे, तब तक आपको परमात्मा इस दुनिया में भेजता रहेगा, जब तक आप अपने लॉ ऑफ कर्मा को आप क्लियर नहीं कर देते या अपनी सारी गलतियां सुधार के आपकी सोल प्योर नहीं हो जाती। आप तब तक बार बार दुनिया में भेजे जाएंगे, क्योंकि वो परमात्मा है, वो अल्लाह है, ही इज़ द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मोस्ट मर्सीफुल। वो इतना कट्टर नहीं हो सकता कि एक गलती आपसे हुई और आजीवन आपको गरम गरम तेल में कढ़ाई में पकौड़ियों की तरह तलेगा। तो मैं ये बोलती हूँ कि जिन लोगों को लगता है कि मैं इस्लाम के अगेंस्ट हूँ, उनको आके मुझसे बात करनी चाहिए, बिकॉज वंस दे विल टॉक टू मी, दे विल नो I'm not against any faith. I'm only against certain things which are happening, certain wrong things which are happening in the name of Islam. तो यही मेरी लड़ाई है, यही मेरा कॉज है। और एक सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म के अगेंस्ट मेरी एक जंग है। आज से नहीं है, बचपन से है। आज तो हम ये कल्चरल रेनेसां देख रहे हैं, सांस्कृतिक पुनर्जागरण देख रहे हैं, बट मैं बचपन से ही इन चीज़ों को क्वेश्चन करती आई हूँ, चैलेंज करती आई हूँ, और आगे भी करती रहूँगी, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम माई सोल, और मैं अपनी आत्मा की किसी भी आवाज़ को दबा नहीं सकती हूँ। these are somewhat radical views, for a Muslim person. And I'm just wondering how they are received by the Muslim community. How do they react to your beliefs and views? जय जी, हमने ये पढ़ा है ना कि कोई भी नई चीज़ जब आप आती है, कोई भी नया विचार जब आता है, तो शुरू में लोग आपको इग्नोर करते हैं, बाद में वो शुरू में मजाक उड़ाते हैं या इग्नोर करते हैं, बाद में विरोध करते हैं, एंड थर्ड स्टेज होती है व्हेन दे एक्सेप्ट योर व्यूज़। मुझे लगता है कि अब मैं थर्ड स्टेज में पहुंच चुकी हूँ। शुरू में लोगों को लगा कि फालतू बोल रही है, कोई बात नहीं है, तो कोई बात ही नहीं, क्या बकवास है, हा 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 करके इग्नोर किया मेरी बातों को। उसके बाद मेरा विरोध शुरू हुआ। अभी कुछ समय पहले तो एक टीवी चैनल पर एक मौलाना ने मुझे जिनाकार घोषित कर दिया था। जिनाकार का मतलब अगर आप नहीं समझते हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ, जिनाकार इज़ लाइक समवन हु इज़ हैविंग इलिसिट और इलीगल सेक्सुअल रिलेशनशिप विद समवन। तो उन मौलाना की नज़र में मैं जिनाकार इसलिए थी बिकॉज आई हैव मैरिड अ हिंदू। उनकी नज़र में मैं जिनाकार इसलिए थी क्योंकि मैंने निकाह नहीं किया, मैंने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की है। अब तो ये रेडिकल थॉट समाज में हमें दूर करनी पड़ेंगी कि रिलीजन एक बहुत ही अलग चीज़ है, हमारा अल्लाह से एक पर्सनल रिलेशनशिप,
और लॉज, कानून अलग चीजें होती हैं, लॉ ऑफ लैंड अलग होती है। शादी, ब्याह, तलाक, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें आप जहां भी रहते हैं, अमेरिका में मैं आऊंगी तो मैं वहां की फॉलो करूंगी, ब्रिटेन में मैं जाऊंगी तो वहां की फॉलो करूंगी। तो स्पेशल मैरिज एक्ट हमारे देश में एक ऐसा कानून है कि दो अलग अलग रिलीजन के लोग साथ में शादी कर सकते हैं वाइल रिटेनिंग देयर रिलीजन्स। उनको अपना रिलीजन बदलने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल दे कैन मैरी ईच अदर, दैट इज स्पेशल मैरिज एक्ट। तो स्पेशल मैरिज एक्ट में मैंने शादी की है, स्टिल ही डिक्लेयर्ड मी जिनाकार ऑन नेशनल टीवी, और जिना की सजा इस्लाम के हिसाब से मौत होती है। तो दैट काइंड ऑफ थ्रेट्स आई हैव रिसीव्ड फॉर माई एक्शंस और फॉर माई चॉइसेस इन लाइफ। लेकिन मैं यही कहूंगी कि जो मेरी सबसे बड़ी ताकत बनी, वो बने मुस्लिम बच्चे, मुस्लिम यूथ एंड मुस्लिम विमेन। क्योंकि उन लोगों को धीरे धीरे ये चीजें, उनको ये रीजन, एक वॉइस ऑफ रीजन लगने लगा। मुझे अभी भी याद है कि अब से 4 साल पहले आज तक के चैनल पे, उस समय रोहित सरदाना करके एक एंकर हुआ करते थे आज तक के, अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर। उन्होंने एक डिबेट की थी फतवा पर। तो उस समय मैंने उस डिबेट में ये बताया था कि देखिए, हम लोगों को लगता है कि फतवा देने वाले लोग अनपढ़ होते हैं, जाहिल हैं, उनको कुछ पता नहीं है, कुछ भी फतवा दिए जा रहे हैं। एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू। They are very calculated, very shrewd and psychologically very intelligent people. They know what they're doing. तो जो फतवा ब्रिगेड होती है, आप देखिए जय जी, हाउ इट वर्क्स। एक मुसलमान बच्चे को बचपन से ये बताया जाता है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। डूज एंड डोंट्स, हराम हलाल की एक लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। और जब इतने लंबे समय तक वो बच्चा हर चीज के लिए आपकी तरफ देखेगा, हर फैसला उसके जीवन का आपसे पूछ के होगा, तो एक समय बाद वो अपनी सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देता है। उसकी रैशनैलिटी, उसकी डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाती है, और वो हर चीज के लिए आपकी तरफ देखता है। तो वो मानसिक स्वतंत्रता खत्म करने के लिए, आपको मानसिक गुलाम बनाने के लिए एक स्ट्रैटेजी है फतवा, जो इस्तेमाल होता है। और आप देखिए किस तरह के फतवे होते हैं। मुसलमान बच्चा नाच नहीं सकता, गा नहीं सकता, मुसलमान लड़की बाल नहीं खोल सकती, नेल पॉलिश नहीं लगा सकती, नॉन महरम के सामने यानी किसी दूसरे मर्द के सामने जा नहीं सकती। इस तरह के अजीब अजीब फतवे होते हैं। तो जब मैंने ये बात नेशनल टीवी पर बोली, आई स्टिल रिमेंबर कि उसके बाद आई हैड रिसीव्ड अ फ्लड ऑफ मैसेजेस फ्रॉम मुस्लिम यूथ। क्योंकि नाचना सब बच्चे चाहते हैं, गाना सब बच्चे चाहते हैं, सब लड़कियां स्वतंत्रता से जीना चाहती हैं। तो मुझे लगता है कि जब मैंने लॉजिकली, रैशनली चीज़ों को एक्सप्लेन करना शुरू करा, तो मुस्लिम बच्चे, मुस्लिम युवा और मुस्लिम महिलाएं इन चीज़ से कन्विंस हुई। जब उनको ये लगा कि हाँ, बहु विवाह, मल्टीपल मैरिजेस 21वीं सदी में हमारे साथ क्यों होती है। उस समय जिस वक्त अरब में होती होंगी, उस समय जंग का माहौल था, जंग में बहुत सारे लोग मर जाते थे, तो उनकी बीवियों का कोई मिसयूज ना हो, अब्यूज ना हो, कोई उनको टॉर्चर ना करे। तो एक समय पे 4 बीवियां उस समय की परिस्थितियों में होगा, आज क्यों हमारे साथ हो रहा है। या छोटी छोटी बच्चियों को ही कहते हैं शरिया में, एज ऑफ मैरिज इज इक्वल टू एज ऑफ प्यूबर्टी। शरिया लॉ में कहते हैं प्यूबर्टी इज व्हाट, जब किसी भी बच्ची को पीरियड्स होने स्टार्ट हो जाए। आज ग्लोबल वार्मिंग है, आज क्लाइमेटिक चेंज है, आज बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, 12 साल की बच्ची को भी पीरियड्स हो जाते हैं जय जी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो बच्ची शादी के लायक है। मैंने खुद देखा है, जब हम राष्ट्र जागरण अभियान में प्रवास करते हैं तेलंगाना, जहाँ के असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपने नाम सुना होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बिल्कुल सुना है। जो कहते हैं, मुसलमानों को भड़काते हैं, इंशाल्लाह एक दिन मुसलमान बच्ची भारत की प्रधानमंत्री बनेगी, ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं। उन्हीं ओवैसी साहब की नाक के नीचे अरब से 80-80 साल के बूढ़े शेख आते हैं, 12-12 साल की मुसलमान बच्चियों को खरीदते हैं मिस्यार निकाह के नाम पर। मिस्यार निकाह आप गूगल में डाल के देख लीजिए। मिस्यार निकाह इज ट्रेवलर्स मैरिज, यात्री निकाह। यानी कोई भी मुस्लिम पुरुष अगर कोई यात्रा कर रहा है, तो उस ड्यूरेशन के लिए किसी भी बच्ची को एक शादी की स्टैंप लगा के सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर सकता है। जब वो यात्रा खत्म हो जाती है, तो निकाह एक्सपायर हो जाता है। देयर इज एन एक्सपिरेशन डेट टू दैट निकाह। नो हम्म, क्लोजर, नो एलिमनी, नो मेंटेनेंस, नो नथिंग। और इनफैक्ट एलिमनी मेंटेनेंस देके भी आप क्या ही कर लेंगे, आपने किसी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। तो ये चीजें, ये वॉइस ऑफ रीजन मुसलमान बच्चों को, युवाओं को और महिलाओं को समझ आने लगी है। और आज आप देखिए सोशल मीडिया के माध्यम से कितनी बच्चियां निकल निकल के आ रही हैं। दे हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अप। क्योंकि एक जो फियर साइकोसिस क्रिएट किया था ना मौलानाओं ने बच्चों के सामने, वो डर हमेशा एक व्यक्ति तोड़ता है। तारिक फतेह जी आए,
फिर मैंने बोलना शुरू किया, फिर बहुत सारे और हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे पैनलिस्ट्स हैं, मुस्लिम पैनलिस्ट्स हैं जो वोकल होके बोल रहे हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं जो वोकल होके बोल रही हैं। तो उनको देख देख के जो एक किसी गली में बुर्का पहनी हुई मुसलमान बच्ची है, वो देख देख के सोचती है कि अगर ये बाजी बोल सकती हैं तो मैं क्यों नहीं बोल सकती, ये भी तो जिंदा घूम रही हैं, इनको भी तो अल्लाह प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से एक दूसरे को देखकर एक मोटिवेशन मिलता है। और मुझे लगता है कि ये अब मुस्लिम समाज में अवेकनिंग होने लगी है, नाउ इज द टाइम। और बहुत जल्दी हम बड़े स्तर पर एक परिवर्तन देखेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। Well, that's a very positive vision, and I congratulate you for being an active part of that. थैंक यू। Along the same lines, you talk about Sanatani Muslims. What exactly is Sanatani Muslim, and how are you awakening them? ग्रेट। जय जी, राष्ट्र जागरण अभियान जिस जो आपने मेरे परिचय में बोला, इज अ मूवमेंट दैट आई एम लीडिंग। तो वो कोई संस्था नहीं है, वो एक नेशनल अवेकनिंग मूवमेंट है जिसमें व्यक्ति और संगठन सभी जुड़ के काम कर रहे हैं। उसके अलावा मैंने एक एनजीओ की स्थापना करी जिसका नाम है कबीर फाउंडेशन। तो जब कबीर फाउंडेशन की मैं स्थापना कर रही थी एंड व्हाइल आई वाज डूइंग माय रिसर्च, आई केम टू नो दैट धर्म केवल और केवल भारत की वोकैबुलरी में है। धर्म का किसी भी और दूसरी लैंग्वेज में कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। और धर्म का मतलब होता है कर्तव्य पालन, कर्तव्य परायणता या राइटियसनेस। किसी भी परिस्थिति में जो करना चाहिए वो धर्म है। आप देखिए भारत के जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो उपनिषद हो, वेद हो, कोई भी भारतीय ग्रंथ आपको कोई पूजा पद्धति नहीं सिखाता है कि आप एक्स वाई जी भगवान को अप्रोच करिए, आपके एक्स वाई जी आराध्य होने चाहिए। वो आपको केवल राइटियसनेस सिखाते हैं, वो आपको केवल लॉ ऑफ नेचर सिखाते हैं, वो आपको बॉडी की साइंस सिखाते हैं। आप हठ योगा कीजिए, आपके ऑर्गन ऐसे काम करेंगे, आपकी मन, आपकी आत्मा, आपका शरीर, सारी चीज़ें इनलाइन कैसे रहें, आप कर्तव्य के रास्ते पे कैसे चल, हाउ यू कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस बॉडी एंड दिस लाइफ। ये आपको सनातन धर्म सिखाता है और भारतीय संस्कृति सिखाती है। तो सनातनी मुस्लिम शब्द मेरे मन में ऐसे आया व्हेन आई केम टू नो कि धर्म और रिलीजन, धर्म और पंथ दो अलग अलग चीजें होती हैं, दे आर नॉट वन। सबसे बड़ी क्लैरिटी जो हम राष्ट्र जागरण अभियान के माध्यम से भारत में भी जाके कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस में जाके भारत की यूथ को दे रहे हैं, हम उनको धर्म, पंथ और संस्कृति यानी कि धर्म, रिलीजन एंड कल्चर की डेफिनेशन बता रहे हैं। वी आर टेलिंग देम कि दीज आर थ्री डिफरेंट थिंग्स, और ये तीनों चीजें आपस में जब हम इंटरमिंगल्ड कर देते हैं तब हम परेशान होते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ, मेरा नाम सुबुई खान है और मैं सनातनी मुस्लिम हूँ। तो मैं कहती हूँ कि मेरा धर्म सनातन है, यानी कि सच का साथ देना ही मेरा धर्म है, राइटियसनेस ही मेरा धर्म है। मेरा मजहब इस्लाम है, एज इन मैं एक मजहब में, एक परिवार में पैदा हो गई। मेरे पूर्वजों के प्रति मेरा वो सम्मान है कि दे चोज अ रिलीजन, उन्होंने एक ऑर्गेनाइज फेथ चुन लिया जिसके माध्यम से वो अल्लाह को अप्रोच करते हैं। आई हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर दैट फेथ। तो वो मेरा मजहब है, जिस परिवार में, कुनबे में मैं पैदा हो गई, उसका सम्मान मुझे करना है। तो दैट इज माई रिलीजन एंड माई संस्कृति इज हिंदू, माई कल्चर इज हिंदू। और संस्कृति को मेरे गुरुजी बहुत खूबसूरत शब्दों में, या ये कहिए कि ऐसे ABCD एलिमेंट्री वे में समझाते हैं कि किसी 10 साल के बच्चे को भी समझ आ जाएगा। मेरे गुरुजी कहते हैं कि भाषा, भूषा, भोजन, भवन, भेषज यानी कि दवाइयाँ, मेडिसिन, और भजन वहाँ की संस्कृति होती है किसी भी जगह की। तो अगर मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ तो मेरी भाषा, भूषा, भोजन, भवन, भेषज, भजन भारतीय होने चाहिए। अगर मैं भारत में पैदा हुई हूँ तो मैं ये तिलक लगाऊंगी। मैं भारत में पैदा हुई हूँ तो मैं भारत के मंदिरों में जाऊंगी, मैं पूजा आरती करूंगी, मैं सत्संग करूंगी, भारत के ग्रंथ पढ़ूंगी, भारत की दवाइयों को, मेडिसिन को मानूंगी, भारत के शास्त्र का, इतिहास शास्त्र, संस्कृति का सम्मान करूंगी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप कभी भी देखिए कि जब भारत में विभाजन के बीज डाले गए जय जी, ब्रिटिश और मुस्लिम लीग के द्वारा, उस समय 1937 में शरिया एप्लीकेशन एक्ट आई कि भारत के मुसलमानों का कानून अलग होगा।
भारत का मुसलमान भारत के दूसरे लोगों से अलग होगा। ये 1937 की बात हम कर रहे हैं। तो Right. शरिया एप्लीकेशन एक्ट, जिसका ना इस्लाम से कोई लेना देना है, प्रॉफिट देकर नहीं गए हमें, इस्लाम ने हमें नहीं दिया। ब्रिटिश और मुस्लिम लीग ने भारत में विभाजन के बीज डालने के लिए शरिया एप्लीकेशन एक्ट भारत के मुसलमानों को दी, और वहां से डिवीजन स्टार्ट हो गया। उससे पहले भारत के मुसलमान भारतीय संस्कृति जैसे ही रहते थे। Hmm. मैंने तो जब भारत में मैं घूमी तो सनातनी मुस्लिम्स के इतने एग्जाम्पल्स मुझे मिले। मैं ऐसे मुसलमानों को जानती हूँ जो देवी भक्त हैं। मैं Hmm. ऐसी मुस्लिम महिलाओं को जानती हूँ जो मैरिड हैं, पैरों में बिछिए पहनती हैं, सिंदूर लगाया करती थी पहले भारत की मुसलमान महिलाएं। और इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि वो मुस्लिम जो राइटियस है, जो सही का साथ देता है, जो रिलीजन से मुस्लिम है, मजहब इस्लाम को सम्मान करता है, मानता है, और जो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो वो सनातनी मुस्लिम है। इट इज नो रॉकेट साइंस जय जी। अगर हम धर्म, पंथ और संस्कृति की परिभाषा समझ जाएं, उनका अंतर समझ जाएं, तो वी विल गेट टू नो कि सनातनी मुसलमान का इतिहास, आई हैव जस्ट गिवन इट अ टर्म। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये लाइफस्टाइल मैंने कोई इजाद किया है। मैंने सिर्फ उसको एक शब्द दिया है। रहीम, रसखान, दारा शिको, कबीर, क्या ये भारत में नहीं रहे हैं? हमेशा से रहे हैं। वो जो भारतीय संस्कृति में रचे बसे हैं, भारतीय संस्कृति को जीते हैं, लेकिन मुस्लिम पंथ में पैदा हुए हैं। तो हमें सिर्फ उस लेगेसी को रीस्टैब्लिश करना है, और जो डिवीजन के बीज हमारे मन में बोए गए राजनीति के लिए, उनको निकाल के बाहर फेंकना। इट्स एज सिंपल एज दैट। Excellent. Let me change the subject a little bit and um, talk about the status of so-called minorities in India. There is a lot of narrative here, particularly in the West, that minorities in India are being mistreated, especially in the last 10 years or so. I just want to hear from you how you think minorities are being treated in India today. I truly, truly like the way when you started the question with so called minorities, because I have been very vocal about this, that Muslims are no longer minority in India. उस समय 1947 में विभाजन के समय मुसलमान कम रह गए थे, तो उनको एक प्रोटेक्शन देने के लिए या उनकी एक मानसिक सेटिस्फेक्शन के लिए उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया। हालांकि भारत में कभी भी, इससे हिस्ट्री ऑफ भारत की, भारत में कभी किसी भी कम्युनिटी का परसिक्यूशन नहीं हुआ है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। Yeah. ज्यूज का पूरी दुनिया में परसिक्यूट हुए, बट दे वर नॉट परसिक्यूटेड इन भारत। एंड वी ऑल नो कि जब पूरे दुनिया में परसिक्यूट होने के बाद उन्होंने जाके अपनी कंट्री बसाई, तो अपने पार्लियामेंट में उन्होंने पहली स्पीच में बोला दैट वी हैव बीन परसिक्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड बट इंडिया। तो ये भारत का इतिहास ही नहीं रहा है किसी को परसिक्यूट करने का। स्टिल उस समय मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया। आज मैं कहती हूँ कि कौन सी परिभाषा के हिसाब से मुसलमान अल्पसंख्यक, क्या बताइए जय जी? 140 करोड़ पॉपुलेशन में से 20 या 30 करोड़ मुसलमान हैं। Yeah. सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी इन इंडिया आर मुस्लिम्स। बाय नो डेफिनेशन, यूनाइटेड नेशंस की किसी भी कन्वेंशन, किसी भी परिभाषा के आपसे आप बताइए कि क्या मुसलमान भारत में अल्पसंख्यक है? नहीं। उसके बावजूद वो अपने आप को अल्पसंख्यक समझता भी है, और बहुत सारे राजनीतिक दल उनके लिए अल्पसंख्यक शब्द इस्तेमाल भी करते हैं। मैं कहती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये स्टैंड लेना चाहिए दैट मुस्लिम्स आर नो लॉन्गर माइनॉरिटी इन इंडिया। और दूसरी माइनॉरिटीज हैं, जैन हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियंस हैं, दूसरे लोग हैं जो संख्या में बहुत कम है। उनको जरूरत है अल्पसंख्यक के टैग की, अल्पसंख्यक के प्रोटेक्शन की या समर्थन की। मुसलमान को अब नहीं है। तो सबसे पहले मैं बहुत ही स्ट्रांगली एंड वेहमेंटली इस चीज को अपोज करती हूँ, एंड आई रिफ्यूज टू बी कॉल्ड अ माइनॉरिटी। कोई मुझे अगर बोलता है अल्पसंख्यक, मुझे गाली लगती है। मुझे ऐसे लगता है कि आई डू नॉट वांट टू प्ले अ विक्टिम इन माय ओन कंट्री। तो पहली बात तो मुस्लिम्स माइनॉरिटी नहीं है। दूसरी बात, आप कहें कि क्या उनके साथ माइनॉरिटी होने के नाते कुछ गलत होता है, तो मैं तो ये कहूँगी कि हंसी भी आती है जय जी इस सवाल पे, और दुख भी होता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं, जिस वक्त राम मंदिर के डिबेट्स चल रही थी, उस समय मैंने खुद देखा है कि मौलाना अयोध्या में जाकर राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। अयोध्या में जाकर रामलला के मंदिर के कैंपस के पास जाके मौलाना साहब राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, चिल्ला चिल्ला के कर रहे थे, बहुत अभद्र भाषा में कर रहे थे। और
वहां से बहुत सकुशल और बहुत बाइज्जत वापस दिल्ली में आए हैं वो। ये भारत है जो यहाँ पे आप रामलला के पास खड़े होके राम मंदिर का विरोध कर सकते हैं, गाली दे सकते हैं, पर फिर भी आप सुरक्षित हैं। उसी वक्त मैंने एक चीज और नोटिस की थी जय जी, रामलला से थोड़ी दूर पर नूह अलैहिस्सलाम की दरगाह है, जहाँ पर हरी चादर लगी रहती है। वहाँ पे बुरके में मुस्लिम औरतें या बहुत सारे मुस्लिम लोग आके अगरबत्ती जलाते हैं, बहुत सारे हिंदू लोग भी आकर श्रद्धा में वहाँ अगरबत्ती जलाते हैं। तो मैं वो देखकर सोच रही थी कि अयोध्या में लोग तकरीबन 500 साल से राम मंदिर का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए उस मंदिर निर्माण के इंतजार में, देख भी नहीं पाए वो। लेकिन वही लोग ने कभी भी जाके नूह अलैहिस्सलाम की दरगाह को डिस्टर्ब नहीं किया, कभी डिस्टर्ब नहीं किया। और बहुत सारे हिंदू वहां जाके पूरे सम्मान के साथ कि ठीक है मुसलमान गलत कर रहे हैं, लेकिन ये गलत थोड़ी है जिनकी दरगाह है। तो ये रैशनैलिटी हिंदू के अंदर है। तो मैं कहती हूँ कि जिस दिन मुसलमान ये देख लेगा कि आप पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सुरक्षित केवल और केवल भारत में है, उस दिन उनको पता चल जाएगा कि इवन इस्लामिक कंट्रीज से ज्यादा सुविधाएं और सुरक्षा और सम्मान मुसलमान को भारत में मिलता है। माइनॉरिटी नहीं होने के बावजूद हमें कितनी सब्सिडीज मिलती हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं, कितने सारी ऐसी सुरक्षाएं, कितनी सारी ऐसी पॉलिसीज, कितने सारे ऐसे कहा जाए कि अम्यूनिटीज हैं जो हमें केवल और केवल मुस्लिम होने के नाते भारत में मिलती हैं। और यही कहना चाहूंगी कि अपनी आंखें खोलें, और जो पढ़े लिखे समझदार मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो प्लीज इस पर आके आके बोलना शुरू करें, क्योंकि हिंदू भाइयों को अब बुरा लगना शुरू हुआ है। जी। अभी उनको उनको ये दुख होता है कि आपको सब कुछ मिलता है, आप हमारे भाई हैं, आप हमसे अलग नहीं हैं। लेकिन अगर कभी इस्लाम के नाम पे कुछ गलत होता है तो आप उसका विरोध नहीं करते। अभी राजस्थान में दो दाढ़ी वाले कट्टर मौलानाओं ने एक हिंदू भाई का गला काट दिया था, जिसकी लाइव ग्राफिक वीडियो पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखी है। हिंदू भाई क्या आपसे ये सवाल नहीं करेंगे कि आप लोग भीड़ में इन नंबर्स सड़कों पर क्यों नहीं दिखाई दिए उसके खिलाफ? आपने क्यों उसका विरोध नहीं किया कि दिस इज नॉट इस्लाम? आपके प्रॉफिट का नाम लेकर वो गला काट रहे थे भाई। आप जब गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा के नारे लगाते हैं, तो जो प्रॉफिट का नाम लेकर गले काटते हैं आप उनके विरोध में नारे क्यों नहीं लगाते? प्रॉफिट के नाम पे जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन चल रहा है, आप उसके खिलाफ सड़कों पे क्यों नहीं उतरते हैं? तो मैं मुस्लिम समाज से कहना चाहती हूँ कि आपका मौन समर्थन भी आपकी गलती है। अगर आप किसी हक की बात पे, इंसाफ की बात पे चुप रहते हैं, तो वो भी आपकी गलती है, और वो आपकी गलती, आपका अपराध ही माना जाएगा। क्योंकि मौन समर्थन समर्थन होता है। अगर आप किसी गलत के खिलाफ बोल नहीं रहे हैं, दैट मीन्स इनडायरेक्ट वे में आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए, कुछ भारत में गलत ना कभी किसी के साथ हुआ है, और माइनॉरिटी वाइनॉरिटी शब्द मुसलमान के लिए इस्तेमाल हम ना ही करें तो बेहतर है। ना पहले कभी गलत हुआ है, ना आज हो रहा है, और ना ही कभी आगे हो पाएगा। अगर हम लोग ये नैरेटिव बनाते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे खिलाफ है, कोई संगठन हमारे खिलाफ है, तो देश किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी संगठन से बहुत बड़ा होता है। सही बात। भारत की नेशनल एथॉज ही नहीं है किसी के साथ कुछ अन्याय करने की। अगर 2 4 5 10 कोई फ्रिंज एलिमेंट्स होंगे, अगर कोई किसी मुसलमान के साथ, कोई हिंदू भी फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली, अगर कोई हिंदू किसी मुसलमान के साथ गलत करता भी है, अन्याय करता भी है, आक्रोश में आके या गुस्से में आके, या वो फ्रिंज एलिमेंट ही हो फॉर एग्जाम्पल, गलत भी करता है, तो हजारों हिंदू ही खड़े हो जाते हैं कहने के लिए कि नहीं बेटा ये गलत है। तो इस तरह का भारत है, तो इसलिए हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं, हमें किसी तरह का कोई डर नहीं है अपने देश में, क्योंकि हमारी नेशनल एथॉस कभी किसी को परसिक्यूट या किसी को परेशान करने वाली नहीं है। Yeah, thank you for clarifying that for our audience, Subhaji ji. Let's talk about some strange things that we are seeing in the Islamic ecosystem lately. So, for example, the great mandir that was built in Abu Dhabi recently, that was opened not too long ago. That is, a totally unheard of phenomenon until recently. Then you have someone like Smriti Irani ji being taken to Medina Sharif. You have Imam Ilyasi ji taking part in Shri Ram Lalla Pran Pratishtha ceremony. What do you think is happening here? I mean, are these just some random events, or there is something more fundamental,
phenomenon that's taking place in Islam? मैं चीज़ों को जय जी लॉ ऑफ नेचर के चश्मे से देख रही हूँ और मुझे ये समझ आ रहा है कि ये युग परिवर्तन का समय है। हमें जो बताया जाता है कि जब युग परिवर्तन होगा तो इस तरह की चीज़ें होंगी, तो वो हो रही हैं, हम देख रहे हैं। तो दुनिया में जो भी चीज़ें गलत होंगी वो अब एक्सपोज होंगी। हमारी जो बीच की मेरी जनरेशन या मुझसे नीचे वाली जो जनरेशन है वो डिसोरिएंटेड है, बट जो बिल्कुल नए बच्चे, छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं, आप 4 साल के 5 साल के बच्चे से बात करिए, वो पेड़ काटने पे रोएगा, वो बोलेगा मुझे दुनिया बचानी है, वो बोलेगा मुझे पानी को बचाना है, आई वॉन्ट टू सेव वाटर, वो क्लाइमेट की बात करेगा, वो जीव हत्या को ये बोलेगा, वो एनिमल राइट्स की बात करेगा। ये एक्चुअली युग परिवर्तन का समय है, ये हो रहा है और ये हम सब लोग नोटिस कर रहे हैं। यही कारण है कि आप मुस्लिम समाज में भी वो परिवर्तन देख रहे हैं। वो मुसलमान बच्चे जो आज तक चुप थे अब बोलना शुरू कर रहे हैं। तो अब वॉइस ऑफ रीजंस धीरे धीरे आगे आ रही हैं, या कहिए हक की बात करने वाले लोग आगे आ रहे हैं, और वो हर फेथ से आएंगे, वो हर भाषा, हर जाति, हर क्षेत्र, हर संप्रदाय, हर देश से आएंगे। तो अभी वो जो राइट एंड रॉन्ग वाला जो समय है ना, अभी हमें राइट वाला जो टाइम है, एक चर्निंग का टाइम है। आप देखिएगा कि अभी थोड़ा हमें धूल धूल दिख रही है बिकॉज चीज़ें चर्न हो रही हैं, एक मंथन हो रहा है, बट इसके बाद का जो सीन मुझे दिख रहा है वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत ही नेचर सेंट्रिक है, वो प्रकृति केंद्रित है, और उसमें लोग भाषा, जातियों, क्षेत्र, संप्रदाय से ऊपर उठकर सही और गलत के आधार पर फैसले लेंगे और बात करेंगे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। I think you've talked about this a little bit earlier, but let me just pose the question a little bit differently. Lately, Hindus have become more aware of the historical wrongs that have been done to their civilization, and they are slowly becoming a little bit more connected with their past, their value system, and are becoming more vocal about preserving their heritage. It seems like you're not threatened by that prospect. In fact, you're working to I'm actually, celebrating it. yeah, you're celebrating it. First of all, I would ask you to give your reasons why you think it's not a threat to you personally, to your family, and to the Muslim ecosystem in India. जी, जय जी, आई डू नॉट कंसिडर इट अ थ्रेट एट ऑल। मैं इनफैक्ट उसको सेलिब्रेट कर रही हूँ बिकॉज मुझे पता है कि ये लड़ाई किसी रिलीजन की नहीं है, ये लड़ाई को एक वैल्यू सिस्टम की है, ये लड़ाई उन जीवन मूल्यों की है जो ना ही सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए ज़रूरी है। ये ह्यूमैनिटी को सेव करने की लड़ाई है। मैं एज अ मुस्लिम हिंदू कल्चरल रेनेसांस से तभी थ्रेटेंड फील करूंगी जब मैं हिंदू को कोई मजहब मानूंगी, जब मुझे ये लगेगा कि ये कोई रिलीजन है, ये मुझे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, कि ये जो पुनर्जागरण हो रहा है हिंदू संस्कृति का, उससे मुसलमान को कतई घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी लड़ाई है जो ज़रूरी थी। हिंदू आज जाग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो इतना कैजुअल, इतना लेड बैक, इतना डिसइंटरेस्टेड, इतना लीस्ट बॉदर्ड हो गए थे कि उनको कोई मतलब ही नहीं था। उनके भगवान को कोई नेशनल टीवी पे गाली दे के चले जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उनके कितने मंदिर डिमोलिश, डिस्ट्रक्ट कर दिए गए, विध्वंस कर दिए, विकृत कर दिए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कि आप देखिए कि एक मुसलमान घर में अगर खाने को रोटी भी नहीं होती है तो भी बच्चे को बचपन से कुरान जरूर रटवाते हैं। हम लोग भारतीय कितने ऐसे हैं जो बचपन से मैंडेटरी अपने बच्चे को भगवत गीता पढ़ाते हैं। वो आपको जीवन जीने की कितने अच्छे लाइफ स्किल सिखाती है, वो आपको ग्रैटिट्यूड सिखाती है, वो आपको टीम वर्क सिखाती है, वो आपको करेज सिखाती है, वो आपको लॉ ऑफ कर्मा सिखाती है, वो आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म सिखाती है। ऐसी कोई भी जीवन जीने की कला नहीं है जो भगवत गीता में मेंशन्ड ना हो। इट इज़ नॉट अ बुक ऑफ रिलीजन, इट इज़ अ बुक ऑफ लाइफ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि थ्रेट एंड फील सिर्फ वही लोग करते हैं जो या तो अज्ञानी हैं, जिनको पता नहीं है कि हिंदू का मतलब क्या है या किस चीज़ की ये लड़ाई चल रही है, या फिर थ्रेटेंड वो फील करते हैं जो पॉलिटिकल नेताओं के कहने में आके मैनिपुलेट हो जाते हैं। मैं अगर आपसे कहूँ कि क्यों मैं इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं आपको फिर सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करूँगी कि मुझे तो अपने बहुत सारे सवालों के जवाब भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में मिले। मैं चाहती हूँ कि जो मैं लकी रही
और जो मैंने अपने पूरे जीवन में चीज़ें सीखी, मैं उसको एक किताब के माध्यम से या कुछ एक कैप्सूल फॉर्म में मुसलमान बच्चों तक पहुंचाना चाहती हूँ, ताकि वो भी मेरे उस एक्सपीरियंस को जी कर शायद अपने कुछ सवालों के जवाब ढूंढ पाए। कि मैं मतलब कहते हैं ना कि दो विचारधाराओं के बीच में एक पुल बनाने का काम कर रही हूँ। कट्टर मुसलमान मुझे कहता है कि आप तो काफिर हैं, आप मुनाफिक हैं, आप इस्लाम से खारिज हो गई, आपने तिलक लगा लिया, अरे अरे ये तो हराम है, चली निकली जाइए यहाँ, आपने हिंदू से शादी कर ली, आप जिना कर रही हैं। दैट काइंड ऑफ एलिगेशंस आई फेस डे इन डे आउट। इस तरफ भी कुछ एक हैंडफुल ऑफ लोग हैं, भारतीय संस्कृति में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि मैं इस्लाम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। वो मुझे कहते हैं कि आप अलतकिया कर रही हैं, अगर आपको इतना भारतीय संस्कृति से प्यार है तो आप हिंदू क्यों नहीं बन जाती। तो मैं दोनों ही लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि मैं जो लड़ाई लड़ रही हूँ उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि आई एम कन्विंस्ड अबाउट दैट आइडियोलॉजी। मुझे एक ऐसा विजन मेरे गुरु के माध्यम से दिख गया है जिससे मुझे मेरे जीवन के सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, जिससे मुझे अपने जीवन का लक्ष्य पता चल गया है, मुझे अपना पैशन पता चल गया, एंड दिस इज व्हाट आई एम फाइटिंग फॉर। मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे हिंदू क्या मानता है, मुसलमान क्या मानता है, ज्यू क्या मानता है, क्रिश्चियन क्या मानता है, आई डोंट केयर एट ऑल। मैं ये लड़ाई जो लड़ रही हूँ उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये लड़ाई सच की लड़ाई है। मैं आपको बताती हूँ, एक दिन मैंने अपने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गोविंद जी, आप कहते हैं हिंदू इज नॉट अ रिलीजन, हिंदू इज अ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑल मोड्स ऑफ वर्शिप। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों देवी देवता हैं हमारे देश में, दो चार और हो जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज व्हाट माय गुरु सेज। तो आप मुझे ये बताइए गोविंद जी कि एक 10 साल के बच्चे को भी समझाना हो कि हिंदू होने का मतलब क्या है, तो उसको कैसे समझाएं। उन्होंने कहा हिंदुत्व मतलब क्या, देश की कलेक्टिव स्मृति का परिपाक, वो क्या है। 5 बातें नमूने के तौर पे बतलाता हूँ। पहला, सभी उपासना पद्धतियों में अखंड श्रद्धा, सभी उपासना पद्धतियों से उसी परमात्मा की प्राप्ति होती है, ये विश्वास। दूसरा, एक ही सत सभी जड़ चेतन में अनुस्यूत है, सेम कॉन्शियसनेस परमिएट्स इन ऑल एनिमेट एंड इनएनिमेट मैटर। तीसरा, मातृत्व के गुण होने के कारण महिला यानी नारी का समाज में विशेष आदर। चौथा, मनुष्य प्रकृति का विजेता नहीं, प्रकृति का अंग है, इसी कारण हम प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन की बात करते हैं। और पांचवा, खाओ पियो और मर जाओ यही जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है, इससे ऊपर भी जीवन का एक उद्देश्य है। मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे जाएंगे, यह विश्वास। जो इन 5 बातों को मानता है वो हिंदू है। पूजा पद्धति या आराध्य से कोई मतलब नहीं है, यू आर फ्री। इष्ट देवता, मैं कहती हूँ कि सेक्युलरिज्म तो भारत से पूरे विश्व ने सीखा है। इष्ट देवता का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत में ही होता है कि सबके अपने अलग अलग इष्ट हैं। आप जिस फॉर्म में, जिस रूप में चाहे भगवान को मान सकते हैं, आकार में भी मान सकते हैं, निराकार में भी मान सकते हैं, गुण में भी मान सकते हैं, निर्गुण में भी मान सकते हैं। देखिए जो 5 बातें मैंने बताई जय जी, ये 5 बातें विश्व की सारी समस्याओं का समाधान है। आज क्या प्रॉब्लम्स हैं पूरे विश्व के सामने, ग्लोबल वार्मिंग, हम प्रकृति बचाने की बात कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, 10 में से 8 लोगों को कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, कोई ना कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, साइकोपैथी है, वो ज़ॉम्बी ड्रग, किस किस तरह की चीजें हम लोग देख रहे हैं, लोग ज़ॉम्बी बन के एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। आज हमें क्या प्रॉब्लम है, वॉर्स, जंग, आर्म एंड अम्यूनिशंस, एक देश दूसरे देश को मारने के लिए तैयार है। हम कह रहे हैं कि भाई सब लोग एक हैं, हम वसुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। आप देखिए कि मेडिक माफिया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, पैसे के लिए कोई भी आप बीमारियां इजाद कर रहे हैं, आप लोगों को मार रहे हैं। हम कह रहे हैं एक ही सत सभी जड़ चेतन है। हम ना ही सिर्फ इंसान को बचाने की बात कर रहे हैं, बल्कि हम कह रहे हैं कि जड़ में भी सेम कॉन्शियसनेस है। और हमें हजारों हजारों साल पहले भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बता के गए हैं, चींटी से लेके पहाड़ तक मैं हूँ, यानी उस पहाड़ में भी मैं हूँ, उस पहाड़ को भी अब्यूज नहीं कर सकते तुम। यू शुड नॉट अब्यूज इवन दैट प्रकृति जो आपको दिख रही है, सिर्फ इंसान। तो जीव हत्या, आप सोचते हैं कि जानवर काट के मार के खाना, हम तो कहते हैं कि
अगर आप प्रकृति का भी कोई उपयोग करें तो भी संयमित करिए, वो भी बैलेंस्ड वे में करिए, बिकॉज उसके अंदर भी भगवान है। तो दैट काइंड ऑफ अ फिलॉसफी इज हिंदू फिलॉसफी, दैट इज व्हाई आई एम फाइटिंग फॉर इट। हमें बहुत डीपली समझना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली आर वी फाइटिंग फॉर, ओनली देन वी कैन बी कन्विंस्ड without any guilt and with conviction. Subhuji, let me just take this, push this envelope a little bit more and say tomorrow or day after tomorrow or 10 years from now, India is declared a Hindu Rashtra. जी, How do you see yourself in that scenario? मैं तो अपने आप को एक कहिए कि एक गिलहरी प्रयास मानूंगी कि जो एक हवन हो रहा है जिसमें सब लोग प्रयास करें पूरे विश्व में, ना ही सिर्फ भारत बल्कि आप जैसे लोग भी जो देश में नहीं रहते हैं बट देश की परिस्थितियों को लेकर चिंतित हैं, देश के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, हम सब लोगों के कलेक्टिव एफर्ट्स का वो नतीजा होगा, वो हमारी एक बहुत बड़ी जीत होगी, नॉट एज अ कम्युनिटी बट एज ह्यूमैनिटी। क्योंकि हम, लेकिन एक बात मैं और क्लियर करना चाहती हूँ जय जी, कि भारत को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने से पहले हिंदू की परिभाषा संविधान में मेंशन्ड होनी चाहिए। हमारे संविधान में धर्म, पंथ और संस्कृति की परिभाषाएं, डेफिनेशन होनी चाहिए, उनमें डिफरेंसेस क्या हैं ये होना चाहिए। तभी हम आए दिन जो टीवी डिबेट पे डिफेंस होते रहते हैं ना कि आप हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकते हैं, भारत तो एक सेक्युलर देश है, हमें ये एक्सप्लेनेशन देने में सारी एनर्जी लगानी पड़ जाती है क्योंकि हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हिंदू राष्ट्र की क्या वैल्यू सिस्टम है, देन वी कैन एस्टैब्लिश, कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए ताकि हम यूनाइटेड नेशंस में भी खड़े होके कॉन्फिडेंस के साथ दहाड़ सकें दैट दिस इज व्हाट हिंदू राष्ट्र इज। और हिंदू राष्ट्र ही आपकी भी प्रॉब्लम से आपके देश को भी बचाने वाला है। तो मैं कहती हूँ कि हिंदू भारत को ही क्यों, पूरे विश्व को हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए, बिकॉज इन सारी प्रॉब्लम से आप तभी निकल पाएंगे जब आप उस फिलॉसफी से, उस अध्यात्म से, उस स्पिरिचुअलिटी से, उस प्रकृति से जुड़ेंगे। तो मेरी जगह उस हिंदू राष्ट्र में यही होगी कि आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ लीविंग अ लेगेसी ऑफ अ सनातनी मुस्लिम, एक ऐसा मुसलमान जो मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ लेकिन भारतीय संस्कृति को जीता है, भारतीय संस्कृति को अपनी आत्मा से, अपनी बॉडी के एक एक सेल से मानता है, जो गाय, गंगा, गांव, कृषि, हिमालय जैसे विषयों को पूर्णतः समर्पित है। इस तरह के मुसलमानों की मैं एक कहिए कि एक ट्रेल बना देना चाहती हूँ कि जिस पर वो मुसलमान बच्चे चल सकें, एंड आई वांट टू लीव बिहाइंड अ लेगेसी जो ऑलरेडी हमारे पास है, बट मैं उसको सिर्फ कुछ किताबें, कुछ लिटरेचर, कुछ वीडियोस, कुछ ग्राफिक्स, कुछ इस तरह का दे के जाना चाहती हूँ मुस्लिम बच्चों को, जो आके फ्यूचर जनरेशंस हैं जो भारत में हिंदू राष्ट्र में एक हिंदू कल्चर में रच के बस के चैन के साथ रह पाए। बहुत खूब, बहुत खूब. I think it's a grand vision, and I congratulate you for clarity of thought on that. Thank you. Subhuji, we've been at it, I think, for more than an hour, actually, considerably more than an hour. लेकिन जाने से पहले एक want you to touch upon, and that is this phenomenon of ex-Muslims. What is ex-Muslim, and how large do you think that population is in Bharat? जी, देखिए एक्स मुस्लिम्स नो डाउट धीरे धीरे करके पूरे विश्व में और भारत में भी बढ़ रहे हैं। और अभी कुछ समय पहले मैंने मुस्लिम समाज की एक मीटिंग की थी राष्ट्र जागरण अभियान के बैनर के अंतर्गत, और उसमें 3 तरह के मुस्लिम्स आए थे। उसमें मेरे जैसे सनातनी मुस्लिम्स भी थे जो तिलक लगाते हैं, मंदिर जाते हैं, या भगवान कृष्ण के या भगवान राम के या देवी के उपासक हैं। और उसमें एकदम टिपिकल मुस्लिम्स भी आए थे जो जो दाढ़ी लगाते हैं, टोपी लगाते हैं और दिखने में बिल्कुल मुस्लिम लगते हैं, बट देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, दे वांट डू समथिंग फॉर द नेशन। और उसमें एक्स मुस्लिम्स भी आए थे जो इस्लाम को एज अ रिलीजन गाली देते हैं और नफरत करते हैं, या दे आर नॉट कन्विंस्ड विद इस्लाम एज अ रिलीजन। तो वो 3 तरह की वॉइसेस सेम टेबल पर बैठी थी। और जो सबसे खूबसूरत बात ये थी कि विदाउट ऑफेंडिंग ईच अदर हम लोग एक बहुत ही साक्षी भाव से, वेदांत का जो एक प्रिंसिपल है साक्षी भाव, साक्षी भाव से हम सारे सब्जेक्ट्स को डिस्कस कर रहे थे ऑन दैट टेबल। सो दैट वाज द ब्यूटी ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, क्योंकि मैं इस विचार को मानती हूँ
हर मन फ्री है, हर आत्मा फ्री है। आप किसी भी बिलीफ को कंट्रोल ना करना चाहिए। तो मैं कोई नहीं होती हूँ किसी को सही और गलत कहने वाली या जज करने वाली कि वो सही है या गलत है। I may respect Islam because I am born and brought up in that community. It does not necessarily mean कि दूसरा एक्स मुस्लिम भी उसको सम्मान करे, क्योंकि उसकी परिस्थितियां मेरी परिस्थितियों से अलग नहीं है। उसका शायद मुझे एक सेट ऑफ पेरेंट्स मिल गए जिन्होंने मेरे सवालों को नहीं रोका, उन्होंने मुझे इंडोक्ट्रिनेट नहीं किया, उन्होंने मुझे एक सनातनी जीवन जीने दिया। हो सकता है कि उस मुसलमान बच्चे को उतना ओपन एनवायरनमेंट ना मिला हो सकता है कि वो इस्लाम के नाम पे अब्यूज हुआ हो। तो उसको जज करने से पहले उसकी पहले हमें परिस्थिति देखनी है कि व्हाट दैट पर्सन हैज गॉन थ्रू इन द नेम ऑफ इस्लाम। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी जय जी कि मुझे आई एम नॉट कन्विंस्ड विद द टर्म एक्स मुस्लिम। आप सोचिए इंसान होने के भी नाते क्या किसी इंसान की पहचान वो होनी चाहिए जो वो नहीं है, जो वो था? व्हाट इज देयर आइडेंटिटी राइट नाउ? उन लोगों को इस पे सवाल करना चाहिए। सपोज करिए आप किसी से पूछे कि भाई आपकी रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, किसी से आप पूछिए व्हाट इज रिलेशनशिप स्टेटस, तो क्या वो ये बोलेंगे कि आई एम एक्स गर्लफ्रेंड ऑफ सो एंड सो, yeah, I'm ex-boyfriend of so and so? No, that is not the present relationship status. तो मुझे लगता है कि एक्स मुस्लिम उस आत्मा के साथ अन्याय है जो एक इंसान बन के पैदा हुई है। आप उसकी वो आइडेंटिटी जो वो नहीं है, उस आइडेंटिटी से वो अपना परिचय दे रहा है। तो इससे बेहतर या तो वो सनातनी कल्चर को मान ले, डिक्लेयर देमसेल्फ कि दैट वी आर सनातनीज। उनकी आइडेंटिटी वो होनी चाहिए जो वो हैं। और मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जिन्हें भी एक्स मुस्लिम से मिली हूँ अभी तक, they are not yet सनातनीज। वो अभी सिर्फ उस स्टेज पे हैं कि एक रिलीजन से उनको प्रताड़ना मिली, टॉर्चर मिला, उनके सवालों के जवाब नहीं मिले, तो देयर लव हैज टर्न्ड इनटू हेट। वो अभी उस चीज से ऊपर ही नहीं उठे हैं। देयर माइंड इज स्टिल स्टक ऑन इस्लाम। मैं एक्स मुस्लिम्स को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो नफरत होती है वो भी कहिए कि कॉइन का दूसरा पार्ट ही होती है, प्यार का दूसरा पार्ट ही होती है। तो दे शुड एक्चुअली सीक मोर और अपने सवालों के जवाब उनको सनातन धर्म में ढूंढने चाहिए। क्योंकि अगर वो अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ इस्लाम से नफरत करने में लगा देंगे तो उनके सवालों के जवाब कि नहीं उनको मिल पाएंगे, और जो डिसोरिएंटेड सोल्स वो बन जाएंगे, और जो डिसोरिएंटेड कंफ्यूज सोल्स होंगे उनको कम्युनिस्ट्स और इस तरह के लोग मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो वी ऑल नो इट। तो हमें दुनिया में रियलाइज्ड सोल्स के नंबर बढ़ाने हैं, भले ही उनका रिलीजन कोई भी हो, डज नॉट मैटर। वो इस्लाम में रहें या इस्लाम छोड़ें, वो उनका अपना पर्सनल डिसीजन है। वी हैव नो authority whatsoever to decide what is right and what is wrong for them. But हमारा मेन जो काम है, स्पेशली मेरा तो मेन कॉलिंग ही ये है कि मुझे लगता है कि इंसान अगर हम बन के पैदा हुए हैं तो एक दूसरे की चेतना जागृत करने में मदद करनी चाहिए। अगर कोई कंफ्यूज्ड है तो उसको कंफ्यूजन से बाहर निकाल के अंधेरे से रोशनी की ओर लाने में मदद करनी चाहिए। रियलाइज सोल्स होने चाहिए, कंफ्यूज सोल्स नहीं होने चाहिए। यही मेरा मैसेज अपने एक्स मुस्लिम्स भाई और बहनों के लिए है। Subhoji, we have covered a lot of ground tonight, although there is a lot more we can discuss and we can carry this conversation for probably pretty long time. So rather than imposing more on your time, let me thank you from the bottom of my heart for making yourself available and for sharing your thoughts. You have a very clear vision, and I congratulate you for having that vision and very All positive. grace of my Guru Jaiji. All grace of my Guru. And the optimism that you show for the future, and I think that optimism is very, very important, not just for me, for yourself, but also for the next generation and our future on this planet together. So with that, thank you once again, and I look forward to future conversations of this nature with you, time and opportunity permitting. सेम हियर जय जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड इट इज़ अ प्लेजर टू बी कनेक्टेड विद यू। आप कभी जब भी भारत आएं, लेट मी नो, वुड लव टू कैच अप विद यू इन पर्सन।